आज हमारे बीच में EICC मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज के रूप में लोकसभा इलेक्शन को सामने रख के एडवोकेट मैथ्यू एंथोनी जी आप लोग को संबोधित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको पता है कि सारे देश में ये जो शासन 10 साल पूरे होने जा रहा है, ये रूलिंग पार्टी द्वारा ये 10 साल सारे आम आदमी को लेके स्टूडेंट, यूथ, वोमेन, भागीदारी, किसान, हमारी जो श्रमिक, ये सब लोगों के लिए ये 10 साल अन्याय काल है। उसको लेके ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे देश में आम जनता को जागरूक करने के लिए और इसी समय पे आज हमारी नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक जाने के तैयारी में चल पड़े। कोई स्टेट होके ये यात्रा मुंबई की तरफ जा रहा है। इसको लेके जो बात आम जनता के सामने रखना चाहिए, हमारी मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्टेट में इंचार्ज वहाँ पे संबोधित करने के लिए भेजा गया है। आज इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज एडवोकेट मैथ्यू एंथोनी जी उनकी बातें रखेंगे और इसके बाद हमारी जो यहाँ सीनियर MLA गोपाल राय जी है, उन्होंने भी आपके सामने थोड़ा बातें इसके ऊपर उनकी चर्चा हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे पत्रकार लोगों आप सबसे मिलने से बहुत बहुत खुश है। मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए मैं मिक्स करके बात करूँगा। 10 साल का अन्याय का क्यों हम बोल रहे हैं? अभी हम GDP ऐसे बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन आम जनता क्या समझते हैं? आवाज ठीक है? हाँ। लेकिन आम जनता के लिए ये सब क्या है, अन्याय का क्या है? यहाँ पे आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है और cases of German, Mr. Major Anthony P. and our Congress President, State Congress President, and Probity spokesman is here, and other leaders, Mahila Congress, Congress and Congress leaders are there. Now, we welcome Mr. Anthony P. He has come. He is the in charge of the Northeast, except Assam. And the program taken by our High Command
that is legal guarantee for MSP after India found government to extend them. Modi promised before 2014 what he is now denying. 10 years of Nayara, backtaking price, rise, highest unemployment and etc. Now, Congress, you know, Congress is the oldest party, democratic party in the world, not in India. This is 138 years running. What Congress promises, Congress used to do in all the states throughout the nation. Now, as for example, what my memory, in UPA region, Congress formed the Sasad Commission for the minorities and Mandal Commission for the backward communities. Now our Rahulji, he raised his voice for censors who are the Dalit and backward communities. They should get their dues according to the budget. Now, unfortunately, last 10 years, when Modi ji had taken over the charges as Chief Prime Minister, the term loan of the central government was only 55 lakhs crores. Now it comes to 185 crores, 185 lakhs crores. Then Modi ji, he has kept the Sachin Commission report and Mandal Commission report in the freeze. Due to that, the Dalit minorities are suffering a lot. Moreover, in the last, after independence, out of last 45 years, this current year is the highest unemployment problem. 13.4% is the highest. High price rise and inhuman treatment we need. The farmers, the law he has passed in the parliament, which is detrimental to the interest of the farmers. Farmers make the agitation in and around Delhi, and Modi ji used like as Russia is using in Ukraine. Don't he has used water cannon, he has used the tear gas, everything as an example. The farmers died within 2 years. More than 2,000 farmers about died in the execution. This is unfortunate. It is a shame for activities by the Modi government. Now they are trying to pass this period because according to them, more than 30 lakhs this back and forth in the central government, more than 70 lakhs back end in the railway,
They are not fulfilled. Last 10 years, though Modi ji promised every year 2 crores employment would be given to the unemployed youth. But during these 10 years, more than 90 lakhs job holder, they lost their jobs. 50 लाख करोड़ का चल रहा है। अगर हम टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का पैसा कम नहीं किया तो ये इकोनॉमी इतना बड़ा ज्यादा होता था, इतना बड़ा रोजगार देता था। तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से आपके सामने बैठ करके बता रहा हूँ कि हमने तो किया है देश के लिए, करके दिखाया है और झूठ नहीं बोला है। और बहुत ज्यादा रोजगारी, बहुत ज्यादा बिलियनर्स को निकाल दिया है, लेकिन गरीब को गरीब नहीं बनाया है। हमने सोशलिज्म का पकड़ के गरीब को ताकत दिया है, एनजीएनआरईजीए ताकत दिया है, एमएसएमई को ताकत दिया है, एसएमईस को ताकत दिया है। अभी हर एक चीज में हम बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, हमको आकर के फैक्ट्स में बोलो, ये मार्केटिंग में मत बोलो, फैक्ट्स में बोलो। आपने एमएसएमई के लिए क्या किया है, आपने एनजीएनआरईजीए के लिए क्या किया है, आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है। सब अन्याय कर रहे हैं, सिर्फ अमीर को अमीर बन रहा है, उसके लिए पूरा पॉलिसीज बनाते हैं। हमारा जवानों को गलवान वाली में सैक्रिफाइस किया, हमारा 25 पोस्ट और 65 चाइना ने ऑक्यूपाई किया, फिर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर चीन के ऊपर एक भी शब्द नहीं निकला। क्यों? डर है। अगर देश के लिए लड़ने का तो देश के लिए हिम्मत से लड़ने का, डर के नहीं और झूठ बोल के नहीं। इसीलिए हम बता रहा हूं कि ये देश को बीजेपी अन्याय दे रहा है, 10 साल से अन्याय दे रहा है, और ये अन्याय के खिलाफ हम न्याय का शब्द आगे लेकर के आ रहा है। और हमको ये शब्द हर एक प्रदेश में लास्ट आदमी तक पहुंचने का है, और इसके लिए हमको पत्रकार जन की सपोर्ट चाहिए। वो ये सब बता करके मैं आप गोपाल जी को दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हमने तो पहले ही बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर, हमने तो बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सबसे खतरनाक चीज है। ये लोगों को डरा के पैसा ब्लैकमेल से लेके आता है, और जो सरकार में है सिर्फ उसके लिए फायदा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बीजेपी के अकाउंट में कितना करोड़ है? करीब 6,000 करोड़ के आसपास है। और जो हमारे अकाउंट में जो भी जितना भी छोटा था वो भी कल बंद किया। इतना डरता क्यों? हम तो सच ही बोलता है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए आवाज ले रहे हैं, और हमने जो बोला है वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। क्योंकि ये चोरी कर रहा है, ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, ये लोगों को सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ सब एजेंसीज को चला के बता रहे कि हमको पैसा दो या हमारे पार्टी में आ जाओ, वरना तो आप सब लोगों को हम जेल में डालेंगे। ये कैसे राजनीति है? अगर ये अन्याय नहीं है तो अन्याय क्या है? वही हम जनता के सामने रखना। और अपना किसान लोग को देखो, 2 साल पहले किसान लोग ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, करीबन 700 किसान लोग मरा भी था। उस टाइम पे ये सरकार ने गलत प्रॉमिस की थी। लोगों ने बताया हमने तो कानून बदले, कुछ कानून नहीं बदला। अभी हमारे बॉर्डर पे भी इतना बड़ा आर्म्स नहीं लगा है। हमारे किसान लोगों को दिल्ली पहुंचाने पे रोकने के लिए अपना ही प्रदेश में, अपना ही देश में, हरियाणा में किला लगाया है, टीआरपीआर, पेलेट्स सब कर रहे हैं। और ये किसान लोग कौन है? हमारा पेट भरने के लिए हमारा अन्नदाता लोग। ये कैसे राजनीति है? अगर ये अन्याय नहीं है तो क्या अन्याय है? और नारियों के ऊपर, औरतों के ऊपर 2022 में
31,560 रेप्स रजिस्टर्ड हुआ है, 86 रेप्स ए डे। ये तो रिकॉर्ड में है, अनरिकॉर्डेड कितना होगा? और एक देश में क्या सुरक्षा है? और बता रहे हो नारी नारी शक्ति, ये सब बता रहे हैं। ये सब एक मार्केटिंग कंपनी है बीजेपी। उसके अलावा इस मार्केटिंग में कुछ दिल नहीं है या कुछ सच्चाई नहीं है। सिर्फ सोचता है लोगों को they have to make fools of the people and they have to come back to power। यही कर रहे हैं बीजेपी। और अभी दो टर्म हो गया है, तीसरा टर्म के लिए आ रहा है, चुनाव के लिए आ रहा है। अगर इस टाइम पे हम ये सच करके जनता के सामने नहीं करके उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वापस हम लोगों को और भी देखना पड़ेगा इन लोगों का अन्याय के ऊपर अन्याय। और ये क्या करना चाहते हैं? सब जगह पे जहां पे ऑपोजिशन रूल पे वहां के सब चीफ मिनिस्टर्स को ईडी, सीबीआई, हमारा कोalition बोलता है जो बीजेपी का कोalition पार्टनर्स है, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सब एजेंसीज। ये ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? अगर एक डॉन के पास भी इतना पावर मिलेगा तो वो भी यही करता है, उसको यही करने के लिए आता है। वो भी अभी बीजेपी कर रहा है और अपना कास्ट सेंसस में जब कांग्रेस कास्ट सेंसस के लिए आवाज उठा रहा है, बीजेपी उसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनीति है यहाँ पे। SC, ST, OBC के खिलाफ बहुत अनीति चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बीजेपी एक ऐसे पार्टी है, फैसिस्ट पार्टी है, उसको किसी और को नहीं कुछ नहीं देने का है। उसका एक ही मुद्दा है, गरीब को और गरीब बनाओ, लोगों को पढ़ाई मत दे दो, रोजगारी मत दे दो, उसको बेरोजगार रखो और ये सब पॉलराइजेशन के मामले में सबको इंगेज करो और वापस ये सब चोरी करके वापस आके प्यारे करें। तो ये सब अन्याय के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएंगे? इसलिए तो हमारा लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया है और मुंबई तक पहुंच गया है। और इसमें हमको जनता की सपोर्ट चाहिए, जनता के पास ये संदेश जाना चाहिए और ये मुद्दा हमको जनता के सामने रखने का है। हमारे पास पूरा डिटेल्स है इसमें, ये आप सब पत्रकार लोगों को ये देंगे, इसमें पूरा डिटेल्स है, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट सब लेकर के इसमें है। और एक बात रख करके मैं गोपाल सर को माइक पास करेंगे। और एक बात है, ये राज्य में अभी बहुत ज्यादा व्यवसायिक लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बिजनेस हाउस को सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है। जब कांग्रेस के राज में लाइसेंस राज के ऊपर ये सब लोग चलता था, लेकिन कांग्रेस के राज में आप देखो, हम ये सब अन्याय आपके सामने रखने के टाइम पे आप लोग पूछेंगे कांग्रेस ने क्या किया है। आप देखो BFSI सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर किसने ओपन किया है? टेलीकॉम सेक्टर किसने ओपन किया है? ITS सेक्टर किसने ओपन किया है? ये सब सेक्टर्स हमने ओपन किया है। और इंडिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर्स अभी कौन कौन है? टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमको सब आरोप से हमको मुक्त किया था। और आम जनता के लिए अन्याय क्या है? सब ये बड़े बड़े डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये तो 2 साल में नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, मेघालय, मिजोरम, अभी त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, मैं सब बीजेपी वालों को यही पूछता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप हमारे साथ रास्ते पे आ जाओ। कई प्रदेश में रोड ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, और फिर भी ये लोग बोल रहे हैं बहुत डेवलपमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपके दोस्त लोगों के साथ, आपके परिवार में
कितना बेरोजगारी है। हम हमारे रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा बोलेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ बोलेंगे, लेकिन आप लोग घर जाके पूछ लो, आपके दोस्तों से पूछ लो। अभी हमारे हिसाब से जो भी डेटा हमको मिल रहा है, ये गवर्नमेंट कुछ डेटा बना नहीं पा रहा है, कुछ डेटा एक्चुअल डेटा बाहर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये लोगों को मालूम है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। या कोई अंग्रेजी में एक कहानी है, पाइप पाइपर की कहानी है, सबको ये म्यूजिक प्ले करके बच्चों को लेकर के सबको एक दिन फंसा गया और उसको पाइप पाइपर बोल दिया। यही हो रहा है हमारे राज्य में, सबको एक मोटा मोटा सपना दिखा रहा है, यहाँ पे देश बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देश बहुत बड़ा हो रहा है, G20 हो रहा है। G20 से हमको क्या, हमारा आम जनता को क्या होगा? यहाँ पे सबसे बड़ा, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बेरोजगारी अभी हो रहा है। और तो आप लोग हमसे पूछेंगे, आप लोग ने क्या किया है कांग्रेस में? हम सब लोग हैं पूरा के 88-93 का हमारा सरकार यहाँ पे था, तो वो टाइम पे करीबन 40,000 नौकरी हमने दिलाया था त्रिपुरा में। अभी आप बीजेपी से सवाल पूछो कितना नौकरी दिया है। हमको ना ऐसे सीधा नहीं बोल करके किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने के, हम फैक्ट्स रख करके बोल रहे हैं। हमने हमारा सरकार थे यहाँ पे, वो टाइम पे 40,000 रोजगार दिया था, आपने कितना दिया? देश भर देखो, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के बीच में 33% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सामाजिक अनरेस्ट होता है, क्योंकि लोग के पास नौकरी नहीं है, तो किसी के पास दौलत देखेगा तो जलन आएगा, मेरे पास नहीं है, तो सोशल सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वैसे बेरोजगारी एक सबसे बड़ा चीज है ये 10 सालों में, और इन्होंने प्रॉमिस किया हर साल में 2 करोड़ जॉब, 2 करोड़ रोजगार प्रॉमिस किया था बीजेपी ने। 30,000 जॉब भी नहीं हो पा रहे, या 30 लाख जॉब भी नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या होगा? तो हम आपके सामने ये रख रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं है ये मुद्दा बीजेपी के सामने लेकर के आपके लिए आवाज लेकर के लड़ने के लिए, तो कांग्रेस ही कर रहा है। इसीलिए हम आपके सामने लेके आ रहा हूं 10 साल अन्याय काल में बेरोजगारी सबसे बड़ा अन्याय है। और आप सबको मालूम है जीएसटी क्या है? जीएसटी हमारे आम आदमी को समझने के लिए सिंपली बोलेगा तो जो हम खरीदता है हम उसके ऊपर टैक्स देता है। तो यहाँ पे सबसे हम सोचेगा ये अमीर वाला सबसे वाला खरीदने वाला लोग है, गरीब लोग तो ऐसे ही खरीदता है और मिडिल क्लास भी ऐसे ही खरीदता है, लेकिन अमीर लोग खरीदता है। लेकिन आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 50% के ऊपर जीएसटी टैक्स भर रहे हैं गरीब से गरीब लोग, और 40% दे रहे हैं मिडिल क्लास को। अमीर लोग सिर्फ 3% के ऊपर दे रहे हैं। क्यों? उसको जीएसटी का रीसेटलमेंट मिलता है। तो जीएसटी किसके खिलाफ है? आम जनता के खिलाफ है। और ये बीजेपी, आपको मालूम है 2012 में दिल्ली में क्या क्या नाटक किया। स्मृति ईरानी तो हर दिन रो रही थी गैस के प्राइस के ऊपर, और वो टाइम पे गैस का प्राइस कितना है, अभी का गैस का प्राइस कितना है, और वो स्मृति ईरानी अभी गायब है। मीडिया को देखने के टाइम पे वो मिलता भी नहीं है। मीनाक्षी लेखी तो दौड़ता है मीडिया को देखने। पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है? मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं जो भाषा में बोलता हूँ वो आम जनता समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर चलाने के लिए जो चीज़ें हैं, चावल खरीदने का है, स्कूल फीस भरने का है, दाल खरीदने का है,
हॉस्पिटल जाने का है, ये सब चीज़ों का भाव कितना हो गया और आपका सेविंग्स कितना है। और बीजेपी बोल रहा है हम सब कर रहे हैं देश के लिए, इस टाइम पे क्या है, हमारा घर चलाने के लिए अभी कितना मुश्किल हो रहा है। ये सब रियलिटी आप लोगों के सामने हमको रखने का है। इसमें हमको पत्रकार लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचने का है, क्योंकि ये लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। Now, in Chandigarh, in and around Chandigarh, the farmers' movement is going on, and he has stopped this petrol pump, all these things. Why? So that the farmer cannot fill the petrol and diesel, and they should not move. This is the inhuman treatment he is doing. Now, especially Mr. Modi and in general the BJP government, they are suffering from panic, afraid of Rahul ji. His Bharat Jodo Yatra from west to north and east to Bharat Jodo Yatra from east to west. It became the panic on the heart of the Modi in particular, and all the governments and the worker of the BJP. You see, you are also facing the problem. Wait, Modi ji has taken about as Prime Minister. 2001 was only 400 rupees. Now cylinder is one gas cylinder is for 1200 rupees. Modi ji announced in his last election in 4 states that he will give Congress promises for 500 rupees cylinder, and Modi ji countered it and he told 450 rupees. They have got this Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. But whether he has implemented his promise, he is always telling Jumla, and false assurance is his habit. This is a disease, I am telling. From starting to end in his speech, all are Jumla. Now, the AIC has taken the program, he has sent our Antony ji, he has already apprised you. Now our appeal to all the people, respected voters of Tripura in general, and also we are praying through you to the voters of India that Modi government should be changed and the lawful government. You know that yesterday what Supreme Court told all the priority elections is bond, all the bond, electoral bond should be checked, and the list should be submitted to the election commission, and it should be in the website of the election commission, and so that people can understand or know how much money, what corporate, Adani and Ambani, how much paid to BJP. Then you know this is in the next forthcoming election, in general election, our firm conviction, we have got firm conviction
that people of India will give their verdict against this lawlessness of Modi regime, and they will support the India. Thank you. And with a sentence I'm Previous assembly election, none of the Congress leaders had visited Tripura. So, don't you think that gives a negative message about Congress? That's a Tripura question. I'll request the PCC president to answer that question. Forthcoming, Mr. Kamal Nath is switching over. His son has already changed his bios and Twitter and other. So, what is? We have been preparing on this press conference inside, so we have not been tracking about the national developments. As and when it develops, we will speak to you about it. Don't you think that will be a huge impact? Too early to comment on it. We cannot speculate like the media. So we will speak about it once the news is confirmed. But So- such inputs are coming. That's okay. That's media inputs. We don't have a confirmed input. Yeah, that is social media or any media inputs. We will not speak on a media speculation. We will speak when things are clear. Firm. And one question is about Has made a promise of giving MSP to the farmers the moment India Alliance is elected to power, as well as on the caste census. अभी हम हमारा ये प्रॉमिस त्रिपुरा के जनता के सामने रख रहा हूँ और उनके सामने ये अन्याय का पूरा अन्याय जिस लोगों के बीच हो रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, वो भी हम आपके सामने रख रहा हूँ, सोचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सोचने के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो न्याय दिया है पहले और वापस हमने ये तो प्रॉमिस दे रहा हूँ कि हम वापस आने से हम जनता को न्याय देंगे। ये करके हम हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक। महीने पहले ऐसा मंदिर हुआ है, इसमें क्या आपको बीजेपी का कोई फायदा होगा बा कांग्रेस का कोई नुकसान होगा कि ऐसा मंदिर तैयारी करने से? आपको क्या लगता है? 2-3 महीने पहले ऐसा उद्बोधन हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? स्पष्ट है, मंदिर तो भगवान का है, बीजेपी का नहीं है। मंदिर या मोस्क या चर्च, वो इन सब में भगवान है, वो कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। किसी ने वो नहीं करके उसमें से फायदा उठाने के लिए कोशिश किया है। जनता तो अंत नहीं है, जनता भी सोचता है। तो हम कांग्रेस पार्टी उस बारे में बहुत स्पष्ट है। हम सब मंदिर, मोस्क, चर्च को रेस्पेक्ट करता है, हर एक विश्वास को रेस्पेक्ट करता है। हमारा सेक्युलर अप्रोच में हर एक विश्वास को हम एक्सेप्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसमें हमको कोई शक नहीं है। उसमें बीजेपी कुछ राजनीति के लिए कर रहे, जनता वो समझता है। हमारे लिए वो कोई तकलीफ की बात नहीं है, हमारे लिए वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों का फेथ को मानते हैं, लोगों का फेथ को रेस्पेक्ट करते हैं और हमारा इसमें सेक्युलरिज्म एक अच्छा सा बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है। हमको इसमें कुछ सोचने का नहीं है। बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम, हमारा नहीं है, जनता समझता है। और कुछ? But sir, you repeatedly have said one thing. BJP is going for all propaganda. Do you think that Congress have the issue? Since you bring all this development issue, you started from the time of the Congress. Congress has given right to education and right to food and other things. But despite that, why could not you get the advantage of it? Where is the failure? आपने अच्छा सवाल पूछा। अगर हमने आप लोगों को भरा हुआ टैक्स, वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सर्विस टैक्स है, जो भी है, वो हमारा पिक्चर लगा करके सेल्फी लगाने के लिए बता रहा हूँ। वो रेलवे स्टेशन में कितना करोड़ों का है वो सेल्फी प्रोजेक्ट, आपका ही पैसा है, हमारा नहीं, आपका ही पैसा है। आपका ही पैसा लेकर के आपको उल्लू बना रहा है और बता रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं। बीजेपी is making a fool out of the people by telling lies, blatant lies to them.
They are taking the tax money of the people, doing a lot of this marketing. Say from G20. Tell me one thing where a rural India, small city or a village benefits with the G20 advertisement. You think, you say that no, we have politics. You think, and then you say, how will a rural India, a small village, will benefit of a G20 advertisement with Modi's picture there? Why do you need a Modi's picture in all the petrol pumps? Why do you need a Modi's picture in all the railway stations? It's whose money? Congress under the leadership of Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi, and all leaders, Rahul Gandhi, we are very clear that we don't want to do marketing with people's money. Let it put for the service of the people. So people are falling for marketing, then people have to think. You all are learned and educated people. What do you think? But how you counter it? We are making the people think. That is why we are doing press conferences with Anyaya Kal. That is why we are trying to get the message to the people. हम सब इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक प्रदेश में अपना लास्ट आदमी तक ये पहुँचने के लिए हमको आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा संदेश पहुँच नहीं गया. Thank you. Anything else? No, thank you. Very well.